Hello everyone, in this video we are going to cover higher order thinking questions from chapter 3 coordinate geometry class 9th NCERT mathematics. Before moving to higher order thinking questions, let's warm up your brain and give answers of all these quick questions. As the first question is, find the coordinates of the point which lies on x and y axis both. X axis and y axis. Which is the point which is lying on both the axes? You can pause the video for a while and you have to answer all these questions first, then you have to check your answers. Okay, the first question is, which lies on x axis and y axis both? Which is the point which lying on both the axes, that is origin, with coordinates 0, 0. The next one is, whose ordinate is -4 and which lies on y axis? Point whose ordinate is -4. Ordinate means y coordinate, right? And which lies on y axis. The point lies on y axis. If the point lies on y axis, what about its abscissa? Its abscissa will be 0 and its ordinate is -4. The next one is, whose abscissa is 5 and which lies on x axis. The point whose abscissa is 5 and lies on x-axis. Any point which lies on x-axis, its y coordinate means its ordinate will be 0. The answer will be 5, 0. The next one is, the abscissa of any point on x-axis. If any point lies on x-axis, then what is its abscissa? What are the abscissa of all these points? You have to find out the abscissa of any point which lies on x-axis. x-axis पे जितने भी points आते हैं उनका abscissa. abscissa means x coordinate क्या हो सकता है? It is 0, it is 1, -1 or it can be any number. It can be any number. x-axis पे जितने भी point lie करते हैं उनका y coordinate 0 होता है. Ordinate 0 होता है. But what about abscissa? Abscissa can be any number, right? The ordinate of any point on x-axis. पहले था abscissa of any point on x-axis. Now the ordinate of any point on x-axis. If any point is lying on x-axis, what can be its ordinate? Its ordinate will be 0. अगर कोई point x-axis पे lie करता है तो उसके coordinates होते हैं x, 0 means ordinate is always 0. The measure of the angle between the coordinate axis. जो हमारे पास दो coordinate axis बनती हैं उनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है? It is of 0 degree, 90 degree, 180 degree और 360 degree. It is of 90 degree, right? Hope आपके सारे आंसर्स सही हुए होंगे. चलिए नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ. Okay, let's start from this first question. A point lies on x-axis at a distance of 7 unit from y-axis. एक पॉइंट है जो x-axis के ऊपर लाई करता है और उसका डिस्टेंस y-axis से 7 यूनिट्स है, राइट? व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स? आपने बताना है कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स इफ इट लाइज ऑन y-axis एट अ डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट्स फ्रॉम x-axis. अगर ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है और x एक्सिस से इसका डिस्टेंस -7 यूनिट्स है तो आपने बताना है तब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है. अगर आपने पीछे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो विद इन 2 seconds यू कैन आंसर इट, राइट? वी आर हैविंग अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस. पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, कहीं पे भी हो सकता है, इधर चाहे इधर, राइट? और उसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितने यूनिट्स है? 7 यूनिट्स. तो आपने बताना है व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स. आपने बताना है कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. अगर पॉइंट लाई करता है x एक्सिस पे और उसका डिस्टेंस y एक्सिस से 7 यूनिट्स है तो वो कौन सा पॉइंट होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. अगर आप देखो तो चाहे हम इस पॉइंट की बात करें चाहे हम इस पॉइंट की बात करें, दोनों ही पॉइंट्स हमारी y एक्सिस से 7 यूनिट के डिस्टेंस पे हैं. तो व्हाट कैन बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? द पॉइंट विच लाइज ऑन x एक्सिस. पॉइंट किस एक्सिस पे लाई कर रहा है? x एक्सिस पे, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस. और y एक्सिस से 7 यूनिट के डिस्टेंस पे है तो इट्स कोऑर्डिनेट्स कैन बी 7, 0 एंड -7, 0. बोथ द पॉइंट्स
lies at the distance of 7 unit from y-axis, right? The next one is what will be the coordinates if it is lies on y-axis? अगर ये point y-axis पे lie करता है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 and 7 at the distance of -7 unit from x-axis. अब यहाँ पे डिस्टेंस के साथ माइनस का साइन तो नहीं आ सकता, क्योंकि जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस में हम नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट करते हैं. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो उन्होंने बोला -7 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस. नाउ दिस इज आवर एक्स एक्सिस और जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे कहीं लाई कर रहा है और हमारे एक्स एक्सिस से वो -7 यूनिट के डिस्टेंस पे. -7 यूनिट मीन्स इट इज 7 यूनिट्स ओनली, राइट? तो इट कैन बी -7 this is and 7 this. Now point is on y axis, that's x coordinate will be 0, so answer will be 0,7 and 0,-7. What are the answers of the first part? First part's answer will be 7,0 and -7,0, and in second part the answer will be 0,7 and 0,-7. Let's do the next one. Now next question is plot A 5,3, B -2,3, D 5,-4 are the three vertices of a square ABCD. आपके पास ABCD एक स्क्वायर दे रखा है और उसके ये 3 vertices आपको given है. 3 vertices are given A, B and D of square ABCD. Plot the point on the graph paper and hence find the coordinates of the vertex C. आपने पहले तो इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए अपने सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. तो करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ योर कोऑर्डिनेट एक्सिस. मार्क द पॉइंट्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 as 5 is the largest one. 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 and 5. Okay, this is x axis, this is y axis. Let's plot the first point 5,3. x5 y3. This is our x5 and this is y3. Point will be here. This is A point 5,3. The next one is B -2,3. -2,3. X -2 y3. This is the point B -2,3. The next one is D 5,-4. 5,-4. It will lie in which quadrant? In 4th quadrant. 5,-4. This will be the point D 5,-4. अब आपके पास A, B और C के दो कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब आपने A, B और D के कोऑर्डिनेट्स हैं. अब आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है अपना और आपने बताना है कि हमारे पास जो वर्टेक्स C है स्क्वायर का उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. अगर हम यहाँ पे अपना स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, राइट? एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स विल बी A, B, C and D. Its coordinates will be this is x -2 and y -4. आप इसकी लेंथ चेक करके भी देख सकते हैं कि क्या हमारे पास ये स्क्वायर बन रहा है. अगर आप इसका चेक करेंगे तो सारी साइड्स का लेंथ हमारे पास सेम होना चाहिए क्योंकि ये स्क्वायर है. तो चेक करो ये कितना डिस्टेंस है 2 यूनिट्स और ये कितना है यहाँ तक 5 यूनिट्स. 5 + 2 7 यूनिट्स. और इस साइड से ये कितना डिस्टेंस है 3 यूनिट्स एंड बिलो कितना है 4 यूनिट्स. 3 + 4 अगेन दिस इज 7 यूनिट्स. तो विच वन फिगर इट इज अ स्क्वायर. एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C -2,4. बस उन्होंने यही पूछा हुआ था C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो आंसर विल बी -2, -4. राइट. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे. क्वेश्चन इज प्लॉट P 1,0, Q 4,0 and S 1,3. Find the coordinates of the point R such that PQRS is a square. सेम क्वेश्चन है, आप खुद करके देखिए
और जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होप आपने लास्ट क्वेश्चन कर लिया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन इज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। आपने किसके वर्टिसेस बताने हैं? रेक्टेंगल के। हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 5 and 3 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। जिसकी लेंथ 5 यूनिट्स है और ब्रेड्थ 3 यूनिट्स है। वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन, उसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करता है, एंड द लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, और जो उसकी लॉन्गर साइड है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज ऑन द थर्ड, वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और उसका एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। देखो बेटा, जब भी कोई क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप उसको उससे पहले सॉल्यूशन देखने से पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके देखिए कि आपका कितना आंसर आप इसका निकाल पा रहे हैं, क्या आपका आंसर करेक्ट आ भी रहा है। द क्वेश्चन इज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। आपने रेक्टेंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। उसकी लेंथ कितनी है? 5 यूनिट्स, और ब्रेड्थ कितनी है? 3 यूनिट्स, राइट। उसके बाद उन्होंने बोला है उसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है, मतलब एक पॉइंट तो उसका O है 0,0। द लॉन्गर साइड लाइज ऑन एक्स एक्सिस, उसकी लॉन्गर साइड एक्स एक्सिस पे है। जहाँ तो लॉन्गर साइड इधर को हो सकती है, जहाँ फिर लॉन्गर साइड इधर को हो सकती है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आधा इधर हो आधा इधर हो, क्योंकि ओरिजिन पे तो वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स होने का क्या मतलब है? या तो इस साइड पे होगी या फिर इस साइड पे होगी पूरी लेंथ। उसके बाद उन्होंने बोला है वन ऑफ इट्स वर्टिसेस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं लाई कर रहा है तो इसका मतलब हमारी जो लॉन्गर साइड की लेंथ है वो इसके लेफ्ट साइड में आएगी। राइट में तो जा ही नहीं सकता रेक्टेंगल हमारा। थर्ड क्वाड्रेंट में रेक्टेंगल का एक वर्टेक्स हमें लाई करवाना है तो लॉन्गर साइड कहाँ पे आएगी? ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, राइट। और लॉन्गर साइड की लेंथ कितनी है? 5, 1, 2, 3, 4 and 5. This is -5 and this will be the length. And what is the width? Width is 3 units. 1, 2, 3. This is 3 units. Now you have to find out the vertices, all the vertices of a rectangle. पहले तो हम अपना rectangle complete कर लेते हैं। This is 3. Let it be 3. This is 3, 1, 2 and 3. और ये हमारा जो रेक्टेंगल है ये कंप्लीट हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, राइट। अब आपको इस रेक्टेंगल के वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। हाउ वी कैन फाइंड आउट? दिस पॉइंट इज ओरिजिन 0,0। नाउ दिस पॉइंट लाइज ऑन विच एक्सिस? वाई एक्सिस। इट्स कोऑर्डिनेट्स विल बी x0, y3. व्हाट अबाउट दिस वन? दिस पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स? You can consider it as A, you can consider it as B. Its coordinate will be x -5 and y 3. Now what about this one point? It is lying again on x axis. It lies on x axis. Its coordinates will be x -5 and y 0. तो उन्होंने पूछा था but we have to find out, write the coordinates of the vertices of the rectangle. रेक्टेंगल के सारे वर्टिसेस के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने थे। A के कोऑर्डिनेट्स 0,3, B के कोऑर्डिनेट्स -5,3, C के कोऑर्डिनेट्स -5,0 और D के कोऑर्डिनेट्स, D मीन्स ओरिजिन O के कोऑर्डिनेट्स 0,0. यू हैव टू राइट देम इन स्पेसिफिक ऑर्डर, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अदरवाइज आप आगे पीछे लिखेंगे तो आपका रेक्टेंगल एग्जैक्टली फॉर्म नहीं होगा। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर POQ is a triangle with coordinates P and O as √13,0 and O 0,0 respectively. If PQ is equal to 7 units, अगर हमें PQ की लेंथ कितनी दे रखी है? 7 units, then find the coordinates of Q. आपने Q के coordinates find out करने हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब बेटा देखो, एक चीज़ तो हमें पता है कि जो पॉइंट Q है वो कौन सी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है? वाई एक्सिस के ऊपर। अगर हम Q के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट y कोऑर्डिनेट. Y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्डिनेट.
विच इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। इसका मतलब अगर हम इस पॉइंट Q का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस, तो हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स नहीं आ जाएंगे। यस, ये तो ज़ीरो है क्योंकि पॉइंट वाई एक्सिस पे है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम विच एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्चुअल में पॉइंट्स का तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब ही यही होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे द इजीएस्ट वे इज टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज हमारे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ गिवन है। अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ गिवन है तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बेस। अब ये पॉइंट कौन सा है, P रूट 13,0। रूट 13,0 का क्या मतलब है कि हमारे पास जो OP की लेंथ है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। इसका मतलब P पे जो कौन सा पॉइंट है, रूट 13, और ये जो लेंथ है हमारे पास ये कितनी है, रूट 13 यूनिट्स, राइट। अब अगर ये रूट 13 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 7 स्क्वायर, बेस इज रूट 13 का होल स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज OQ we have to find out. 7 7s are 49, root 13 का square is 13 plus OQ square. Now we have to subtract them. 49 minus 13 is equal to OQ square. ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 636 is equal to OQ square. अब हम स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्वायर इधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, रूट में। तो वैल्यू ऑफ OQ will be square root of 36 which is equal to 6 units. So what are the coordinates of point Q? It is this length is, if this length is 6 units, इसका मतलब Q पे कौन सा point है, 6, तो उसके coordinates क्या आ जाएंगे, 0,6. Hope it is clear. Let's do the next one. This is again a very good question. इसको करने से पहले एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचें कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, राइट। कुछ बच्चे तो इसमें बहुत सारे तरह के मिसकॉन्सेप्ट्स यूज़ कर देते हैं, गलत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, दैट इज़ नॉट ओके। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल POQ इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपके पास कौन सा ट्राइंगल दे रखा है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मीन्स इन विच ऑल 3 साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। QP इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू RQ। उन्होंने बोला है विथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R। Q के कोऑर्डिनेट्स है 0,5 और R के कोऑर्डिनेट्स है 0,-5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों साइड्स की लेंथ हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ QR, 5 यूनिट्स अबव 5 यूनिट्स बिलो, मतलब दिस टोटल लेंथ इज 10 यूनिट्स, राइट। इसका मतलब ये वाली लेंथ भी 10 यूनिट्स होगी और ये वाली लेंथ भी 10 यूनिट्स होगी। अब अगर ये तीनों लेंथ हमारे पास 10 यूनिट्स हैं तो कुछ बच्चों को लगता है कि P के कोऑर्डिनेट्स भी 10,0 हो जाएंगे। इतना तो पता है कि P एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा और यहाँ पे हमारे पास कोई पॉजिटिव पॉइंट आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस इज 0। तो हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए था, राइट। अब हमें अगर x कोऑर्डिनेट चाहिए था तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 10 यूनिट आ जाएगा। ये ना तो वर्टिकल डिस्टेंस है ना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। और y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट होता क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। मतलब ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस है, y एक्सिस से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस आएगा ना वही इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब हमें पहले तो फाइंड आउट करना था कि इसका डिस्टेंस क्या है। ये हॉरिजॉन्टल, ये जो डिस्टेंस आपके पास दिख रहा है ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, दिस इज अ स्लैंटिंग डिस्टेंस, राइट। तो ये वाला डिस्टेंस नहीं है, ये OP इज डिफरेंट। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज लार्जर देन बेस एंड परपेंडिकुलर। अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे तो इसमें हमारे पास जो OQP बन रहा है ना वो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बन रहा है। ये राइट एंगल है यहाँ पे।
अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये इन दोनों से बड़ा है। OP से OPQ की लेंथ जो है वो OP से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये 10 नहीं है पॉइंट। अब आपने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कैसे करने हैं? देखो दो तरीके हैं। द फर्स्ट वे टू फाइंड आउट इट इज, आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। ये 10 यूनिट्स है आपके पास। कौन सी ट्राइंगल में? दिस वन। यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल, राइट। अगर आप देखोगे तो ये वाली लेंथ आपके पास कितने यूनिट्स है? 5 यूनिट्स, और ये हमारे पास 10 यूनिट्स है। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ OP in right triangle POQ. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Hypotenuse is 10 square, base is OP. This we have to find out. And what is the perpendicular? This is 5 square. So this is 100 is equal to OP square plus 25. 100 minus 25 is equal to OP square. This is 75 is equal to OP square. अब अगर आप OP का स्क्वायर ट्रांसपोज करते हैं तो ये बनेगा √75। √75 होता है 5 इंटू 5 इंटू 3, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5√3 यूनिट्स। इज इट क्लियर? ये हमारे पास OP की लेंथ है, कितनी है ये? 5√3 यूनिट्स। अगर ये 5√3 यूनिट्स है तो P के कोऑर्डिनेट्स, P पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? 5√3 डेफिनेटली। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? द कोऑर्डिनेट्स विल बी 5√3, 0। आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत इजी है। आपने बस थोड़ा सा ध्यान देना था। बच्चे कॉन्सेप्ट गलत कहाँ पे लगाते हैं, उनको लगता है कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम ही होता है शायद, तो अगर ये 10 यूनिट्स है तो वो इसको 10,0 लिख देते हैं, जो कि नहीं है, राइट। और यहाँ पे हमें सबसे पहले तो OP का लेंथ फाइंड आउट करना था। OP का लेंथ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, जितना हमारे पास OP का लेंथ होगा उतना ही हमारे पास P पॉइंट आ जाएगा 5√3, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 5√3, 0। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना एक इस भी मेथड से किया जा सकता था। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है ना, उसमें जो ऑल्टीट्यूड होता है, ऑल्टीट्यूड इज कॉल्ड हाइट, उसका फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट भी होता है। द ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4। द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड। अब यहाँ पे √3/2 और साइड कितनी है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की? 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 5। आंसर विल बी 5√3। और यहाँ पे ऑल्टीट्यूड कौन सा था हमारे पास? OP, जो परपेंडिकुलर है बेस पे। OP इज 5√3। तो इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बहुत छोटा सा हो जाता है, डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, let's do this one question. If one point is 2a plus 3, 2b plus 1 is equal to -4, 9, then find the value of a and b. आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट्स की पोजीशन तभी सेम होती है जब उसका x कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल हो। 2, 3 और 3, 2 सेम पॉइंट्स नहीं है। सेकेंड रो थर्ड x, थर्ड रो सेकेंड x, बोथ आर डिफरेंट प्लेसेस, राइट। सिमिलरली अगर उन्होंने ये दोनों पॉइंट्स इक्वल दे रखे हैं तो ये दोनों पॉइंट्स इक्वल होने का क्या मतलब है? x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y. You can equate them directly. From here you will get the linear equations in one variable and you can find out the value of a and b. This is 2a plus 3 is equal to -4. What you will get? 2a is equal to -4 minus 3 and a will be -4 minus 3 is -7/2. This is the value of a. Now find out b. b is 2b plus 1 is equal to 9. 2b is equal to 9 minus 1, right?
This is 2b is equal to 8 and b will be 8 divided by 2 which is equal to 4. So what is the value of b? B is 4. The value of a is minus 7 by 2 and value of b is 4. Again this is a very good question. P 3,2 and Q 7,7 are 2 points. Perpendiculars are drawn to x axis from P and Q. P और Q दोनों से आपने x axis के ऊपर perpendicular draw करने हैं. Find the coordinates of L and M. और ये जो perpendicular हैं, 1 minute, this question is incomplete. This is the complete statement. P 3,2 and Q 7,7 are 2 points. Perpendiculars are drawn to x axis from P and Q, meeting x axis at L and M respectively. जो अपने P और Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं वो x एक्सिस के ऊपर L और M पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं. आपने फाइंड आउट करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ L एंड M एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ L एंड M. आपने L M की लेंथ फाइंड आउट करनी है और L और M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू. ट्राई इट and answer these questions in comment box. Thank you. Have a nice day. Hope you understand.